So students, in last video we have taken information about external ear and middle ear. We also have studied structure at the same time functions of these two parts. In today's lecture we are going to concentrate on internal structure of ear or internal part of ear. बच्चों को पता नहीं ये जो पार्ट है क्यों बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन ये जो पार्ट है वो बहुत ही सिंपल पार्ट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत से वक्त क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और इसे डिफिकल्ट समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी पार्ट है ये. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. So internal structure of ear or innermost part of ear is also known as labyrinth. इसे labyrinth भी कहा जाता है. So labyrinth is nothing but the internal ear. So internal ear को ही हम labyrinth भी कहेंगे. Then अगर हम बात करते हैं labyrinth की तो this part is made up of two important parts. ये दो important parts से बना है. The very first bony labyrinth and then there will be membranous labyrinth. तो ये दो उसके पार्ट है. पहला जो है bony labyrinth, उसके नाम से ही पता चलता है कि bony structure से ये बना हुआ है, इसलिए उसे हम कहेंगे bony labyrinth. और अगर हम बात करते हैं membranous labyrinth की तो that is the part which is situated or which is present inside of this bony labyrinth. मतलब bony labyrinth के अराउंड, उसके अंदर ये membranous labyrinth नाम का पार्ट प्रेजेंट होता है. So basically your internal ear is divided into two parts, bony labyrinth and then membranous labyrinth. अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर फिल्ड होते हैं with the help of fluid. यहाँ पर fluid प्रेजेंट होता है. That fluid is very important to know. ये जो fluid है वो जानना बहुत जरूरी है. So अगर हम बात करते हैं bony labyrinth की तो is filled with a fluid known as perilymph. तो bony labyrinth जिस fluid से भरा हुआ है या फिर यहाँ पर जो fluid present है वो fluid को हम कहने वाले हैं perilymph. So it should be clear in your mind. If you talk about bony labyrinth, so that is filled with perilymph. But if you talk about membranous labyrinth, लेकिन अगर हम membranous labyrinth की बात करते हैं तो membranous labyrinth is filled with another fluid that is known as endolymph. So don't get confused. If endolymph is asked, then you have to answer membranous labyrinth. लेकिन अगर वहां पर आपको perilymph पूछा गया है तो that is associated with bony labyrinth. तो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस थोड़ा याद रखिए, कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं. So let me clear. If they are asking you about bony labyrinth, so you have to remember this perilymph. But if question is on membranous labyrinth, then you have to remember endolymph. तो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस है. दोनों ही पार्ट्स फ्लूइड से भरे हैं, लेकिन एक में रहेगा perilymph और वो पार्ट है bony labyrinth, लेकिन दूसरे में रहेगा endolymph and that is nothing but the present inside of membranous labyrinth. तो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस याद रखिए. अब membranous labyrinth को हमें बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है या फिर membranous labyrinth के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. तो बेसिकली membranous labyrinth is again divided or it is again made up of two parts. The very first part is known as vestibular apparatus and the second part is known as cochlea. So VC or vestibular apparatus and cochlea, these are the two parts of membranous labyrinth. You can see in diagram, यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैंने ड्रॉ किया हुआ है, this entire structure, तो उसे हम कहेंगे vestibular apparatus. और ये जो पार्ट है उसे हम कहेंगे कॉक्लिया. तो ये दो पार्ट से आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बना हुआ होता है. अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का भी जो फर्स्ट पार्ट है वेस्टिबुलर एपरेटस उसके ऊपर. सो लेट मी क्लियर, इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज लेब्रिंथ
and this labyrinth is divided into two parts, or it is divided into two parts, bony labyrinth and then there will be membranous labyrinth. तो bony labyrinth के अंदर, inside of that bony labyrinth, this membranous labyrinth is situated. And if you talk about bony labyrinth, it is filled with perilymph, but membranous labyrinth is filled with endolymph. Then again, if you talk about membranous labyrinth, it is divided into further two parts, or it is made up of two parts, vestibular apparatus and cochlea. Now we have to concentrate on first vestibular apparatus. So students, now we have to concentrate on vestibular apparatus. As I told you कि जो membranous labyrinth है, that is made up of two important structures, vestibular apparatus and cochlea. तो उसमें से vestibular apparatus के ऊपर पहले हम concentrate करते हैं, उसके बारे में information देखते हैं. तो basically, as you can see in diagram also, तो ये जो vestibular apparatus है, that is nothing but this sac-like structure. ये sac-like structure होता है, and so this entire structure, vestibular apparatus, that is nothing but this sac-like structure. ये sac-like structure है, and this structure is again divided into two parts, utriculus and sacculus. So ये जो part है, this is known as utriculus and then sacculus. तो ये दो parts में ये vestibular apparatus divided है. अब अगर हम बात करते हैं utriculus और sacculus की, तो यहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो सेंसरी इन नेचर है, और वो स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स को हम कहने वाले हैं मैकुला. तो मैकुला आर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन utriculus and sacculus, and utriculus and sacculus, these are the important part of vestibular apparatus. अब apart from this utriculus and sacculus, there will be three semicircular canals. तो आप यहाँ पर three semicircular canals देख सकते हो, posterior, superior and this horizontal canals. तो ऐसे तीन यहाँ पर semicircular canals होते हैं. semi, half circular, मतलब वो पूरी तरीके से सर्कल नहीं होते हैं. हाफ सर्कल या फिर मून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर देयर. आउट ऑफ दिस थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, दो जो कैनाल्स है वो हॉरिजॉन्टल है और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल है. दो जो है वो वर्टिकल है और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर सुपीरियर कैनाल की और पोस्टीरियर कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो वो वर्टिकल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की तो उसका शेप इनके परपेंडिकुलर है. तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होने वाले हैं, जिसमें से दो जो है वो वर्टिकल है और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल है. सो these are the three semicircular canal. अब if you talk about this semicircular canals, तो उनका जो एंड पॉइंट है वहां पर आपको थोड़े से राइजेस या फिर थोड़ा सा वो जो पार्ट है वो आपको, जहां पर मैंने ए लिखा है वो पार्ट आप देख सकते हो. तो वो पार्ट जो है वो राइजेस, मतलब थोड़ा सा वो जो पार्ट है उठा हुआ आपको दिखेगा, और उसे हम कहने वाले हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस. So crista ampullaris, nothing but the each semicircular canal is swollen, somewhat swollen. वहाँ पर थोड़ा सा जो पार्ट है, some ridges are there, और वो जो ridges है उसे हम कहेंगे crista ampullaris. This ampulla is also having sensory cells. यहाँ पर भी सेंसरी सेल्स होने वाले हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, यूट्रिकुलस एंड सैकुलस वहां पर सेंसरी सेल्स है. एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट एम्पुला, तो वहां पर भी सेंसरी सेल्स है. तो ये दोनों सेंसरी सेल्स मिलके जो हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम है, हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं. इसलिए अगर आप नोटिस करोगे, इफ देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम और इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम है, तो या फिर कुछ कान में अगर कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन काइंड ऑफ,
या फिर वहां पर कुछ डैमेजिंग हो गया है, तो पर्सन विल नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, उसके पोस्चर में भी गड़बड़ होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि दिस सेंसरी सेल्स विच आर प्रेजेंट इन यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस एट द सेम टाइम इन मैकुला एट द सेम टाइम एम्पुला, तो ये सेंसरी सेल्स मिलके आपके बॉडी को बैलेंस करने में या फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, आपके बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में और बॉडी का जो पोस्चर है उसको प्रॉपर मेंटेन करने में ये दोनों स्ट्रक्चर्स या फिर ये सेंसरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स के अलावा वेस्टिबुलर एपरेटस में अगेन यू विल बी एबल टू सी कैल्केरियस स्ट्रक्चर या फिर कैल्केरियस पार्टिकल्स अ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। सो कैल्शियम से बने हुए कुछ पार्टिकल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दैट कैल्केरियस पार्टिकल्स आर नोन एज ईयर स्टोन्स, या फिर उन्हीं को हम कहेंगे ओचोलिथ, या फिर उसी को आप कहोगे ओटोकोनिया। तो दैट स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट इनटू द vestibules. So basically if you talk about membranous labyrinth, so it is divided into two important structure, vestibular apparatus and then there will be cochlea. Out of that we have taken information about the vestibular apparatus. So vestibular apparatus is made up of utriculus, secculus. Utriculus और secculus में रहेगा sensory cell जिन्हें हम कहेंगे macula. At the each semicircular, apart from that there are three semicircular canals. दो उसमें से जो है वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है, और ये तीनों का जो बेस है वहां पर आपको कुछ राइजेस दिखेंगे, कुछ स्वेलन पार्ट दिखेगा जिसे हम कहेंगे क्रिस्टा एम्पुलारिस। यहाँ पर भी आपको कुछ सेंसरी सेल्स दिखने वाले हैं, और ये दोनों सेंसरी सेल जो मैकुला में प्रेजेंट है और जो एम्पुला में प्रेजेंट है, ये सारे के सारे सेंसरी सेल्स मिलके आपके बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में, आपके बॉडी के पोस्चर में हेल्प करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ओटोलिथ या फिर ओटोकोनिया या फिर उसी को आप कहोगे ईयर स्टोन, दैट आर नथिंग बट दी कैल्केरियस particles which are present in vestibule. After vestibule, next we have to concentrate on about the cochlea. After studying vestibular apparatus, now we have to concentrate on the next part of membranous labyrinth, that is nothing but the cochlea. So cochlea ये जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर द वेस्टिबुलर एपरेटस। सो अब हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली कॉक्लिया इज एंड हाउ इट इज मेड अप ऑफ। सो कॉक्लिया इज नथिंग बट द लॉन्ग एंड कॉइल्ड आउटग्रोथ ऑफ सेक्युलस। अभी हमने जो सेक्युलस और यूट्रिकुलस देखा था वेस्टिबुलर एपरेटस का, तो वो डायग्राम में भी मैंने ये शो किया था कि वेस्टिबुलर एपरेटस का ही जो सेक्युलस है वो सेक्युलस का ही ये आउटग्रोथ है, लेकिन ये आउटग्रोथ नॉर्मल आउटग्रोथ जैसा नहीं है, ये काफी लॉन्ग है और कॉइल्ड है। तो लॉन्ग, अब यहां से आपका सेक्युलस कंटिन्यू होगा। सो जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, तो सेक्युलस का ही ये आउटग्रोथ है, लेकिन कैसा आउटग्रोथ है? लॉन्ग एंड कॉइल्ड। तो वो स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कॉक्लिया। सो कॉक्लिया इज नथिंग बट द एक्सटेंशन और यू कैन से एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सर्कुलस विच इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड इज नोन एज कॉक्लिया। तो ये हो गया कॉक्लिया के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, तो दिस इज मेन हियरिंग ऑर्गन। हम जो सुन पाते हैं तो सुनने के लिहाज से जो मेन ऑर्गन है वो है आपका कॉक्लिया। तो अगर देखो ये कॉक्लिया का अगर मैं इसे कट करता हूं, ये जो पार्ट है कट करता हूं, तो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो वो क्या क्या पार्ट्स है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। कॉक्लिया इज हैविंग 3 चेंबर्स। यहाँ पर 3 चेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। 3 चेंबर्स, अपर चेंबर, मिडल चेंबर एंड लोअर मोस्ट चेंबर। इफ यू टॉक अबाउट अपर चेंबर, तो अपर चेंबर को हम कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई, मिडल चेंबर को हम कहेंगे स्केला मीडिया एंड लोअर मोस्ट जो है उसे हम कहेंगे स्केला टिम्पैनी।
सो वेस्टिबुला अपर, मिडल वाला मीडिया और लोअर मोस्ट टिम्पानी, ऐसे 3 यहाँ पर चेम्बर्स प्रेजेंट हैं. सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 चेम्बर्स. अब अगर हम बात करते हैं स्केला वेस्टिबुली, ये वाला, एंड स्केला मीडिया, ये वाला, तो ये दोनों के बीच में आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगा और वो मेम्ब्रेन को हम कहेंगे रिजनस मेम्ब्रेन. तो दिस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओवर हियर, जिसे हम कहेंगे रिजनस मेम्ब्रेन. लेकिन वही अगर हम बात करते हैं मीडिया, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पानी, तो उनके बीच में भी एक शॉर्ट आपको मेम्ब्रेन दिखेगा और वो मेम्ब्रेन को हम कहने वाले हैं बेसिलार मेम्ब्रेन. सो बेसिकली 3 चेम्बर्स, अपर, मिडल, लोअर. अपर और मिडल के बीच में का जो मेम्ब्रेन है वो है रेजिनस मेम्ब्रेन, और मिडल और लोअर चेम्बर्स के बीच में का जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन को हम कहेंगे बेसिलार मेम्ब्रेन. सो दिस 2 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. ये 2 मेम्ब्रेन्स वहां पर प्रेजेंट है जो काफी अहमियत रखते हैं ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में. अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दिस अपर चेम्बर एंड दिस लोअर चेम्बर, तो स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला टिम्पानी ये आउटर मेम्ब्रेन्स है, आउटर चेम्बर्स है. तो ये जो आउटर चेम्बर्स है उनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है. उसी प्रकार से ये जो स्केला मीडिया है वहां पर भी छोटा सा कैविटी है, वहां पर भी फ्लूइड है. लेकिन आपको याद रखना है जो आउटर चेम्बर्स है, तो आउटर चेम्बर्स में आता है स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पानी. तो ये 2 जो चेम्बर्स है वहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे पेरिलिम. सो पेरिलिम और द फ्लूइड प्रेजेंट इन आउटर चेम्बर्स. आउटर चेम्बर जब हम कहते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्केला टिम्पानी की एंड स्केला वेस्टिबुला. तो ये दोनों का मिलके, ये दोनों को हम कहेंगे आउटर चेम्बर्स, एंड दैट इज फिल्ड विथ पेरिलिम. बट इफ यू टॉक अबाउट स्केला मीडिया, तो दैट इज फिल्ड विथ एंडोलिम. वो जो है वो भरा होता है एंडोलिम से. ये आपको यहां पर याद रखना है. आपको डायग्राम दिया जाएगा और आपको कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए भी कहा जाएगा. तो वेस्टिबुला में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पेरिलिम, यहाँ पर भी पेरिलिम, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देयर विल बी एंडोलिम. ये सारे फ्लूइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. अब इसके अलावा जो बेसिलार मेम्ब्रेन है वो बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है. अगेन दिस सेल्स आर सेंसरी इन नेचर. सो ये बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन वो एक्सटेंड हो रहे हैं इन मीडिया, ऊपर की तरफ वो एक्सटेंड हो रहे हैं. तो वो सेल्स का मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर which is based on basilar membrane projecting into the scala media. बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसके सेल्स, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है रो ऑफ सेंसरी सेल्स. यहाँ पर बहुत सारे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं और ये सेंसरी सेल्स के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जाकर टच करते हैं और इसकी वजह से सेंसेशन हमें मिलता है. वो कैसे मिलता है, दैट वी हैव टू सी वर्किंग ऑफ ईयर के अंदर. लेकिन यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रखिए कि टुडे वी हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंटरनल ईयर. और इंटरनल ईयर के कौन कौन से पार्ट है, तो इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज लेब्रिन एंड दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, बोनी लेब्रिन एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिन. बोनी लेब्रिन जो है वो बोन से ढका हुआ है या फिर बोन से अटैच है, और वो जो बोनी लेब्रिन है उसके अंदर जो पार्ट है उसे हम कहेंगे मेम्ब्रेनस लेब्रिन. और ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिन है दैट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, वेस्टिबुलर apparatus and then there will be cochlea. We have taken information about vestibular apparatus and now we also have taken information about cochlea. So this is all about the internal structure of ear. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दिस कॉक्लिया इज नथिंग बट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हियरिंग या फिर मेन ऑर्गन फॉर हियरिंग. तो यहाँ पर जो भी साउंड पिच है
वो एसोसिएटेड होता है विथ फ्रीक्वेंसी, तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को ही हम प्रॉपरली सुन सकते हैं। सो दैट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं। और ये सारे फ्रीक्वेंसीज को किस प्रकार से रिसीव किया जाता है, फिर वहां पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें अब हमें समझनी है। लेकिन उससे पहले ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वेस्टिबुलर एपरेटस में यूट्रिकुलस सेक्युलस में हमने सेंसरी सेल्स देखे थे, फिर उसके बाद में जो आपका वेस्टिबुलर एपरेटस का ही एम्पुला था वहां पर भी हमने सेंसरी सेल्स देखे हैं, यहाँ पर भी ऑर्गन ऑफ कॉटी हमने देखा है। तो ये सारे के सारे सेंसरी सेल्स हैं, और ये सारे के सारे सेंसरी सेल्स होने की वजह से ये सारे फोनो रिसेप्टर हैं, ये साउंड वेव्स को या फिर साउंड को रिसीव करेंगे और फिर वहां पर आपको जो भी चीजें हैं वो प्रॉपरली सुनाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर वेस्टिबुलर एपरेटस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से वो जो स्ट्रक्चर है वो आपके बॉडी पोर्शन को, इक्विलिब्रियम को और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजों से साबित होता है कि अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, दिस ईयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग दी बॉडी। हमारे बॉडी का पोस्चर, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने का, बैलेंस मेंटेन करने का काम भी ये जो ईयर है वो करने वाला है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, किस प्रकार से हम सुन सकते हैं वो।